ایک کے کام کا مسئلہ تھا، اس لیے ایسی مثال ہے کہ ہر آدمی سمجھ جائے۔ آپ یہاں نماز باجماعت پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ جب آپ گھر نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ کس کو کرتے ہیں بھلا؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اور جب مسجد میں نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، جہاں 5 وقت جماعت ہوتی ہے، جمعہ نہیں ہوتا، تو وہاں سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں کتنے سجدوں کا ثواب ملتا ہے؟ 27 کا۔ اگر جامع مسجد میں کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، وہاں 500۔ وہاں جو سجدہ آپ نے گھر کیا تھا وہ کس کو کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اور جو یہاں امام کے پیچھے کیا یہ کس کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ تو 500 درجے جو شان بڑھا دیا ہے، اب امام کی تابع داری کا شان خدا بڑھا رہا ہے یا ہم بڑھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جی۔ لیکن جب وہ اس کو امام آپ نے مان لیا تو امام کی تابع داری خدا اور رسول کے حکم سے واجب ہو گئی ہے۔ مقرر امام آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا نام قرآن پاک میں ہو یا نہ ہو، حدیث میں ہو یا نہ ہو، لیکن اب ان کی تابع داری خدا اور رسول کے حکم سے واجب ہو گئی ہے۔ امام صاحب رکوع جائیں، آپ پیچھے سے کریں کہ امام صاحب ذرا آیت پڑھ کے جانا، کس آیت کے مطابق آپ جا رہے ہیں؟ اس طرح کرتے ہیں نا آپ۔ وہ کھڑے ہوں سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ کہیں کہ مولوی صاحب ذرا حدیث سنانا، کس کے مطابق آپ نے یہ قیام قامہ کیا ہے؟ ایسے اس کو مقرر آپ نے کیا ہے، لیکن جب وہ اس کو امام آپ نے مان لیا تو امام کی تابع داری خدا اور رسول کے حکم سے واجب ہو گئی ہے۔ مقرر امام آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا نام قرآن پاک میں ہو یا نہ ہو، حدیث میں ہو یا نہ ہو، لیکن اب ان کی تابع داری خدا اور رسول کے حکم سے واجب ہو گئی ہے۔ امام صاحب رکوع جائیں، آپ پیچھے سے کریں کہ امام صاحب ذرا آیت پڑھ کے جانا، کس آیت کے مطابق آپ جا رہے ہیں؟ اس طرح کرتے ہیں نا آپ۔ وہ کھڑے ہوں سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ کہیں کہ مولوی صاحب ذرا حدیث سنانا، کس کے مطابق آپ نے یہ قیام قامہ کیا ہے؟ ایسے ہی کرتے ہیں آپ، خاموشی سے چلتے ہیں پیچھے۔ اللہ کے بندو، یہی تو تقلید ہوتی ہے۔ تو جب نماز باجماعت ہوتی ہے، امام کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اور اس کے بعد مقتدی جو پیچھے ہیں وہ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ یہ جو رکا دیکھ گیا ہے جی، کیا غیر مقلد ہے تو؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کے ذمہ دار رہنا۔ اب دیکھو، میں اپنا مسلک بیان کر رہا ہوں، انہوں نے یہ بدماشی کی ہے، ذلت آمیز شکست کی، یہ اشتہار بھیج کر۔ یہ وہ مناظرہ ہے، اس کی میں پوری درجات آخر میں سناؤں گا، کہ جس میں ان کو وہ ذلت آمیز شکست ہوئی ہے کہ ان کا چیئرمین کہتا تھا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ مناظرہ۔ اب دیکھیے، جو مسائل یہاں پیش ہیں ان میں یہ ایک نہیں پیش کریں گے۔ ان کی شرارتیں میں بتاتا ہوں، یہ پڑھ کے سناؤں گا آپ کو کہ اس میں ہے کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام نے جب سجدہ کیا تو کس کو کیا، اور مقتدی نے کس کو سجدہ کیا؟ نہیں۔ اگر کوئی یوں بیان کرے کہ امام تو خدا کو سجدہ کرتا ہے اور مقتدی اپنے امام کو سجدہ کرتے ہیں، جی آپ کے دل میں کبھی یہ وسوسہ پیدا ہوا؟ اگر کوئی یہ بات کہے وہ جھوٹا ہے یا نہیں؟ جی نہ، وہ درس قرآن کا نام لے کر یہ بات کرے پھر تو سچا ہوگا نا، قرآن کا نام لے کر۔ وہ قرآن کا نام لے کر جھوٹ بول رہا ہے، چلو وہ درس حدیث کا نام لے کر یہ بات کہے تو سچا ہے یا جھوٹا؟ جی کذاب ہے۔ تو دیکھیے، یہ لوگ سٹیج پر قرآن ہاتھ میں لے کر جھوٹ بولتے ہیں۔ مسئلہ تقلید اتنا ہی ہے، جیسے امام بھی خدا کو سجدہ کر رہا ہے، مقتدی بھی خدا کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک بات آپ سے پوچھوں کہ یہ جو مقتدی ہیں، اب مقتدی کہلانے کے بعد اللہ کے بندے تو نہیں رہے نا؟ جی رہے ہیں۔ بندے کس کے ہیں؟ مقتدی کس کے ہیں؟ مقتدی کس کے ہیں؟ ہم بندے کس کے ہیں؟ امتی کس کے ہیں؟ امتی کس کے ہیں؟ اور مقلد کس کے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو کیا اس میں کوئی اختلاف ہے آپس میں؟ کچھ بھی نہیں۔
तो इमाम भी खुदा को सजदा करता है, मुक्तदी भी खुदा को सजदा करता है। अब कोई आदमी इसको गलत कहे तो ये कहे कि ये मुक्तदी इमाम को सजदा करके झूठ है या नहीं। इसी तरह मसला तकलीद है, हमारा इमाम भी किताब और सुन्नत पर अमल करता है, कहे तो किताब और सुन्नत पर अमल करता है। हम भी किताब और सुन्नत पर अमल करते हैं, लेकिन उसकी रहनुमाई में, उसकी रहनुमाई में। अगर इमाम की ताबेदारी में खुदा की इबादत शिरक नहीं, तो इमाम की ताबेदारी में खुदा की इताअत भी शिरक नहीं है। इन बेचारों को ना इताअत का माना आता है, ना तकलीद का माना आता है। अब एक मौलवी साहब बड़ा जोर लगा के यहाँ गए हैं कि कुरान में कलायद का लफ्ज आया है जानवरों के लिए, कुलादा का लफ्ज आया है। अगर कोई कुरान और हदीस में इंसान के लिए कुलादा का लफ्ज दिखा दे, तकलीद कुलादा कलायद का, तो कहता है मैं अपना घर उसको अलाट कर दूंगा। अल्लाह के बंदे ये देखो, एक तेरे जैसा पहला भी था, ये उसने रफा जैन के मसले के लिए घर भेज दिया था। इसका नाम है अब्दुल रशीद अंसारी। ये है काजी बादालत काजी मसूदुर रहमान, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सियालकोट। जज साहब लिखते हैं कि इस मुकदमा में काबिल गौर बात यह है कि रेस्पोंडेंट मुद्दा अलैह ने शुरू से इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। तामील करने के बावजूद ना तो वो इब्तदाई अदालत में पेश हुआ, ना इस अदालत में पेश हुआ। इसके खिलाफ यक तरफा कार्रवाई अमल में लाई गई है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि अपील कुनिंदा अपने इत्कादात का ऐसा पक्का है कि उसने अपना मकान रफा दैन पर तहकीक और मुकदमाबाजी की खातर बेच डाला है। अब्दुल रशीद अंसारी गैर मुकल्लिद है। उसका कहना है कि वो 50,000 रुपया तहकीक और मुकदमाबाजी पर खर्च कर चुका है और 4 साल से जायद अरसा से मुकदमाबाजी की तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। अब बेचारे ने मकान भी बेचा, 50,000 रुपया लगाया रफा दैन की तहकीक पर। जज ने फैसला क्या दिया है कि अहले सुन्नत वल जमात के 4 मकातबे फिक्र हैं, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली। जज ने क्या लिखा है कि अहले सुन्नत वल जमात के अब 50,000 खर्च करके अपना मकान बेच के हमारा अहले सुन्नत होना उसने अदालत से साबित करवा दिया और इस पर मोहर लगवा दी है कि वो सुन्नत पर अमल करने वाले नहीं। अरे कम से कम इतने ही लिखवा लेते कि 5 मकदे फिक्र हैं, कहीं तुम्हारा भी जिक्र कर देता जज। जज कहता है सुन्नत पर अमल करने वाले हैं ही 4 मकदब, हनफी, शाफी, मालिकी। जिनको जज सुन्नी कह रहा है उनकी नमाज सुन्नत के मुताबिक है या सुन्नत के खिलाफ है? अरे इनको तो सुन्नियों से निकाल दिया है। जज ने अहले सुन्नत मानने से इनको इनकार कर दिया है और फिर आगे ये लिखता है कि जिस मसले पर केस है इसका फैसला सदियों पहले हो चुका है और मैं इसका फैसला देने की अपने आप में जुर्रत नहीं पाता क्योंकि मुझ में कुव्वते इज्तिहादिया मौजूद नहीं है। जज ने लिखा है कि ये मसला इज्तिहादी है, मुजतहिद की तकलीद कर लो जाके, मुजतहिद की। तो बेचारे ने 50,000 खर्च किया, मकान भी बेचा और सुन्नियों से जमात को खारिज करा दिया, सुन्नियों से जमात को, और तकलीद का फैसला करवा लिया। इसी को कहते हैं खासिरत दुनिया वाले आखिरा। अब ये कहता है कि मुझे कोई ये कलादा कलाए तकलीद का लफ्ज कुरान हदीस में इंसान के लिए दिखा दे। मैं आपसे पूछता हूँ, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा इंसान है या नहीं? इंसान है। बुखारी में उनके कुलादा का जिक्र मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इंसान हैं या नहीं? मुस्लिम इमाम अहमद में उनके कुलादे का जिक्र मौजूद है। ये कहता है मैं 25 साल हदीस पढ़ाता रहा हूँ। अरे तुझे बुखारी तो आए नहीं पढ़ाता क्या है? मैं तुमसे पूछता हूँ कि 25 साल में तूने कितने मुहद्दिस पैदा किए, किसी का नाम तो बता। कहता है मैं 25 साल आलमगीरी पढ़ाता रहा हूँ, शामी पढ़ाता रहा हूँ। अरे तू नाम तो ले, 25 साल में तू कितने मुफ्ती तूने पैदा किए? या सारे मरते ही गए हैं तेरे मुहद्दिस और मुफ्ती? दुनिया में ना कोई तेरा शागिर्द मुहद्दिस है ना मुफ्ती है। 25 साल तू पढ़ाता किनको रहा है?
اگر 25 سال میں ایک محدث پیدا نہیں کر سکا، ایک مفتی پیدا نہیں کر سکا، تو صاف پتا ہے کہ نہ تجھے حدیث آتی تھی نہ تجھے فقہ آتی تھی۔ اگر آتی ہوتی تو کم سے کم ایک محدث تو 25 سال میں پیدا کر دیتا، ایک مفتی تو 25 سال میں پیدا کر دیتا اور دکھاتا ہمیں کہ یہ مفتی ہے۔ سے پتا چلا کہ جس کو 25 سال میں بخاری کی حدیث نہیں ملی، اس بیچارے نے پڑھایا کیا ہوگا؟ لوگوں میں شور ہے کہ میں 25 سال حدیث پڑھاتا رہا، میں 25 سال عالمگیری پڑھاتا رہا، مجھے کہو بتاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا۔ ہم تیار ہیں اس قصے کے لیے، ہم 100 مسئلہ رکھیں گے شامی اور عالمگیری کا۔ یہ تلاش کر کے دے پہلے ہمیں کہ ہے کہاں کہاں، پتہ چلے گا کہ اس کو عالمگیری اور شامی آتی ہے۔ سٹیج پر ناچ لینا سچے ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ میدان میں پتہ چلتا ہے کہ سچا کون ہے اور کس کو عالمگیری آتی ہے اور کس کو نہیں آتی، کس کو شامی آتی ہے اور کس کو شامی نہیں آتی۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے دکھا دو بھائی مکان کی رجسٹری لے آؤ، کیونکہ اب ہمیں آپ پر اعتماد نہیں رہا۔ ان کے اشتہار نکلا، ایک نکلا 50,000 روپے انعام فاتحہ طلب الامام کے مسئلہ، ایک نکلا 1,00,000 روپے انعام پشاور سے، 50,000 کا فیصل آباد سے اور 20,000 کا راول پنڈی سے۔ کتنے پیسے ہو گئے کل؟ 1,70,000 روپے ہو گئے۔ لکھا یہ تھا کہ حدیث حنفی جو پیش کریں اس کو سچا کون مانے؟ فیصل آباد کی عدالت، تو ہم یہ انعام دے دیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں فیصل آباد کی عدالت کا فیصلہ ہے، بعدالت سید طاہر حسین کاظمی، سول جج فیصل آباد، مقدمہ نمبر 28/1 سن 1984۔ ہم نے عدالت میں قرآن پاک کی ایک آیت اور 24 احادیث لکھ کر پیش کر دی۔ اب یہ قرآن حدیث کا نام لینے والے وہاں ناچتے ہیں عدالت میں جا کے، ہم نے اشتہار میں آیت کا نہیں لکھا تھا، انہوں نے آیت کیوں لکھی ہے؟ یہ دیکھو قرآن کا، ہم نے اشتہار میں آیت نہیں مانگی تھی، انہوں نے کیوں آیت لکھی ہے؟ یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں کھڑے ہو کر۔ ہم نے ایک حدیث کہی تھی، انہوں نے 24 کیوں لکھی ہیں؟ آخر ایک حدیث پر بحث ہوئی، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا پر، کہنے لگے یہ حدیث صحیح نہیں۔ کیوں؟ وہ یاد ہے نا کہ ایک سانس میں 3 مرتبہ کہنا ضعیف ضعیف ضعیف۔ 24 شیخ الحدیث کھڑے ہیں، سب نے یک بار بھی کہا ضعیف ضعیف ضعیف۔ جج نے پوچھا کیا کمزوری ہے؟ کہا اس میں ایک راوی قتادہ ہے، وہ ان سے روایت کرے تو حدیث صحیح نہیں ہوتی۔ میں نے بخاری شریف کھول کر عدالت میں رکھ دی، پہلی جلد میں 40 حدیثیں قتادہ کی تھیں، میں نے کہا یہ لکھ دیں کہ 40 حدیثیں جھوٹی ہیں بخاری کی۔ اب ایسے کھڑے تھے جیسے سمن بکمن والی آیتیں ان کے لیے نازل ہیں۔ جج نے پوچھا جناب جواب دیں، لکھتے ہیں یہ 40 حدیثیں جھوٹی ہیں؟ جناب آج ہماری تیاری نہیں ہے، مجھے تاریخ دے دیں۔ اگلی تاریخ پر آئے تو کہنے لگے جو ابو عوانہ کی سند ہے اس میں ابو عبیدہ مجہول ہے، حدیث صحیح نہیں۔ میں نے تقریب التہذیب دکھائی جج کو کہ دیکھو یہ راوی فلاں اس کے آگے مجہول لکھا ہے، یہ راوی اس کے مجہول لکھا ہے، انہیں کہیں کہ اس ابو عبیدہ کے سامنے اسماء الرجال میں لفظ مجہول دکھا دیں۔ جج صاحب نے کہا کہ ہاں بھی دکھائیں، کس نے اس کو مجہول لکھا ہے؟ کہتے کسی نے بھی نہیں۔ کہ تم نے کیوں مجہول کہا؟ کہتے اس کا نام ہی ہمیں کہیں نہیں ملا۔ میں نے کہا یہ کس نے تمہیں کہا کہ جس کو غیر مقلدوں کے 24 شیخ الحدیثوں کو جن کا نام نہ ملے وہ مجہول ہو جاتا ہے؟ مجھے کہتی آپ تلاش کر دیں۔ میں نے کہا میں تو پرائمری اسکول کا ماسٹر ہوں، 4 کتابیں لائے ہوں جس میں اس کا نام ہے۔ میں نے کتاب الانصاب سمانی کی رکھ دی عدالت میں، تاریخ کبیر بخاری کی رکھ دی، میزان الاعتدال رکھ دی، تہذیب رکھ۔ وہی ابو عبیدہ ہے، وہی اس کا استاد قتادہ ہے، وہی شاگرد عبداللہ بن رشید ہے جو سند میں ہے۔
जज ने सनद देखी, इधर रावी देखे, कहने लगे ये वही अबू उबैदा है? जी है तो वही, आपको क्यों नहीं मिला था? फिर अब जवाब क्या है? जी जवाब यही है कि तारीख अगली दे दें। तैयारी नहीं। अगली तारीख पर पेश हुए, पिछले 2 इतराज खत्म। अब कहने लगे ये हदीस शाज है, शाज। जज ने पूछा वो क्या होता है शाज? तो इसका माना आपको नहीं आएगा। ने कहा अगर मुझे माना ही ना आया तो मैं फैसला कैसे करूंगा? तुम ऐसा लफ्ज बोलो जो मुझे समझ में आए। बस ये इस तरह है असूल हदीस की, ये आपको समझ नहीं आएगी। मैंने कहा जी ये आपको समझाना नहीं चाहते, आप मुझे इजाजत दें, मैं प्राइमरी स्कूल का मास्टर हूं, मैं समझाता हूं आपको। असल में असूल हदीस के 2 कायदे हैं, एक को कहते हैं ज़ियादत सिका, एक को कहते हैं शाज। ये दोनों को गड़बड़ करना चाहते हैं, मैं दोनों समझा देता हूं आपको। तो क्या जनाब की तारीफ अब्दुल करीम साहब, 5 आदमी कहते हैं कि आज यहां जमात मौलाना अब्दुल करीम साहब ने कराई इशा की। एक आदमी कहता है कि नहीं मौलाना हक नवाज साहब ने कराई। अब इस एक आदमी की बात को माने तो 5 को गलत कहना पड़ता है, जमात को गलत कहना पड़ता है ना। तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये आदमी कितना भी सच्चा हो, यही समझा जाएगा कि जमात गलती नहीं करती, इस एक आदमी को कोई वहम हो गया। इस एक आदमी की बात मानने से जमात की बात रद्द होती है ना, इसको कहते हैं शाज। क्या कहते हैं? अब ज़ियादत सिका की मिसाल क्या है? वो ये है कि 5 आदमियों ने बयान किया कि आज इस मस्जिद में इशा की जमात मौलाना अब्दुल करीम साहब ने कराई है। 2 आदमी और आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने सूरह अर्रहमान पढ़ी थी दोनों रफ्तों में। अब सूरह अर्रहमान के जिक्र से किसी की पहलों की बात रद्द हो रही है? ये एक नई बात बयान की है जो पहलों ने बयान नहीं की, इसको कहते हैं ज़ियादत सिका। अब ये हदीस है इज़ा कब्बरा फकब्बिरू व इज़ा करा फांसितू। अगर ये ऐसी हदीस पेश करें कि अबू मूसा रजी अल्लाह ताला की हदीस में किसी रावी ने यूं कहा हो कि इज़ा कब्बरा फकब्बिरू व इज़ा करा अल फातिहा तफकरउल फातिहा व इज़ा करा सूरत फांसितू, तो उसको हम इसके खिलाफ कहेंगे। फिर वो रावी ज्यादा मजबूत हों, ये कमजोर हों, तो ये शाद बनेगी, वरना नहीं बनेगी। अब जज साहब को बात समझ आ गई। मैंने कहा मैंने 4 संदें पेश की अबू मूसा शरी की, जिसमें वह इज़ा करा फांसितू है। ये अगर इसको शाद कहना चाहते हैं तो कम से कम 14 संदे तो पेश करें ना। जज साहब ने कहा आपके पास कितनी संदे हैं जिसमें यह है कि इज़ा कब्बरा फकब्बिरू व इज़ा करा अल फातिहा तफकरउल फातिहा? कहने लगे एक भी नहीं। ने कहा फिर इसको शाद क्यों कहते थे? तो कहने लगे हमें क्या पता था ये शाद का माना आपको समझा देगा। हम तो समझते थे ना माना आपको समझ आएगा, हम शाद का शोर मचाएंगे, पिछले नारा लगाएंगे मसल कहल हदीस जिंदाबाद, हम कामयाब हो जाएंगे। हमें क्या पता था ये प्राइमरी स्कूल का मास्टर आपको शाद का माना भी समझा देगा। कहा फिर आगे कहता तैयारी के लिए तारीख दे दें। 4 तारीख आते रहे कि भाई कोई इतराज, जी अभी तक तो कोई ज़हन में नहीं आया, फिर तारीख दे दो। फिर अगली तारीख आई, भाई कोई इतराज अब इस हदीस पर, जी अभी तक तो ज़हन में, फिर तारीख दे दो। 4 तारीखों के बाद जज साहब ने कहा कि अगली तारीख पर कोई इतराज है तो पेश करो, वरना मैं फैसला सुनाऊंगा, फैसले की तारीख दे दूंगा। अगली तारीख पर आए, भाई कोई अब इतराज है इस पर? कहने लगे नहीं जी फैसले की तारीख दे दो। तो ठीक है फलां तारीख को फैसला हो। ये जब जिस दिन फैसला हुआ है उस दिन हमारा रायविंड के इज्तिमा का दूसरा दिन था, सन 84 में। तो हमारे साथी तो रायविंड गए हुए थे, इनके जनाब मदारिस के तलबा भी, उस्ताद भी सारे फिर रहे हैं। और बातें क्या हो रही हैं? आज 20 जीतेगी फिका से, 20 जीतेगी फिका से, 20 जीतेगी फिका से। मैंने कहा कि फिका की तो कोई बात हमने पेश ही नहीं की, और हदीस पेश किया तो हमने पेश की, इंशाल्लाह जरूर जीतेगी आज। जज साहब ने 4 बजे बुलाया, पूछा कौन है बहादुर बेग? ने कहा जी मैं हूं। उसने देखा, उसने कहा बाबा जी आप बूढ़े और कमजोर आदमी हैं,
वैसे आप जैसे आदमी को हमेशा जेल में रहना चाहिए जो फितने डालता देता है। सिर्फ तेरे बुढ़ापे को देखकर मैं तुझे ये सजा नहीं देता। फैसले में उसने ये लिखा कि हनफियों ने जो हदीस पेश की है इज़ा कब्बर, पूरी हदीस नकल की है, ये सही है। और जो लोग ये कहते हैं कि जो इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती, ये उनकी बात सही नहीं है। ये फैसला मेरे हाथ में है। अब 1,70,000 रुपया हमारा इनके जिम्मे कर्ज हो गया या नहीं? आप पूछेंगे लिया क्यों नहीं? जज ने लिखा है कि ये जो पैसे का मुआदा था ये इश्तहार में है, अदालती कागज पर नहीं। ये स्टाम्प पर लिख के दें, फिर अदालत पैसा दिलाने की जिम्मेदार। हम कहते हैं लिख दो, ये लिख के नहीं देते। लेकिन हमारा कर्जा तो इनके जिम्मे हो गया ना। अब मैं यही कहता हूं कि तुम्हारा जनाजा जायज नहीं जब तक कर्जा ना अदा करोगे। मैं तो इनकी कब्र पर भी खड़े होकर फैसला सुनाता कि जितने मर गए हैं इस फैसले के बाद बिला जनाजा मरे हैं, उनका जनाजा जायज नहीं होगा। जो रहते हैं वो मिलकर कर्जा अदा कर दें। इसलिए मैं कहता हूं कि आप मकान की रजिस्ट्री भेज दें हमें, हम दिखाते हैं कलादा का लफ्ज अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए, हज़रत उम्मे सलमा के लिए। खैर, तो मैंने आपके सामने मसला तकलीद की मुख्तसर सी वजाहत अर्ज की है। दूसरा मसला जो यहां छेड़ा गया वो वही कि तुम्हारी नमाज नहीं होती। क्यों नहीं होती? तुम इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ते। हाँ, एक बात वैसे काबिल तारीफ थी। आज तक इनके मौलवी तकरीरों में कहा करते थे कि आयत वइज़ा कुरिअल कुरान काफिरों के लिए आई है, यही कहते थे ना। लेकिन शेखुपुरी साहब ने यह तस्लीम किया है कि आयत आम है, नमाज ही के लिए है। 113 सूरतें इमाम नमाज में पढ़ेगा, पिछले खामोश, ये हाफिज साहब ने माना है। अब एक जो फातिहा के बाद वाली सूरत है वो खा फजर हो या असर, मगरिब हो या इशा, जुमा हो या ईद, किसी नमाज में मुकद्दी पीछे पड़ेगा, कोई फर्क नहीं है ना। ना बुलंद आवाज का ना आहिस्ता आवाज का कोई फर्क है? पिछला आहिस्ता पड़ेगा या ऊंची पड़ेगा? ये सूरतें पिछला किसी तरह नहीं पड़ेगा ना। सारे मानी साफ कर दिए। इज़ा करा का माना क्या है, अनशदू का माना क्या है? 113 सूरतों में मान लिया कि 113 सूरतें जो कुरान पाक की है उनके लिए नाज़िल तो ये सारे कुरान के लिए हुई है। लेकिन अल्लाह के नबी पाक ने ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब कह के फातिहा को इससे खास कर लिया है। ये है मौलाना का तर्ज़ इस्तेमाल। अब इस पर फिर आगे वो फरमाते हैं कि कोई कहे हमारे अकाबिर ने यूं कहा, तुम्हारे अकाबिर बड़े अच्छे लेकिन नबी सबसे अच्छे, तुम्हारे अकाबिर बड़े नेक लेकिन नबी सबसे। अब वो लोगों को बताना ये चाहता है कि ये बात कि वइज़ा कुरिअल कुरान से फातिहा खास हो गई है, इस हदीस से ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब से ये अल्लाह के नबी की बात है। इसलिए हम अकाबिर की बात तो याद रखो जो मैंने बताया था कि अहले हदीस इनका माने का नाम का माना है हदीस का नाम लेकर झूठ बोलने वाला। अल्लाह के नबी ने कभी नहीं फरमाया कि आयत वइज़ा कुरिअल कुरान से ला सलाता के तहत मैंने फातिहा को खास किया। ये बात अब्दुल्ला शेखुपुरी की बनावटी बात है और अल्लाह के नबी के जिम्मे झूठ लगाकर फिर लोगों को तासुर दे रहा है कि अल्लाह के नबी मासूम है, तुम्हारे काबिर मासूम नहीं। अरे नबी की तूने बात ही पेश नहीं की, बात तो तूने अपनी पेश की, जाली और बनावटी। किसी के पास अगर है ये शरारतों के लिए पर्चे लिख रहे हो, अगर अल्लाह के नबी की ऐसी हदीस है कि अल्लाह के नबी पाक ने फरमाया हो कि ये जो आयत नाज़िल हुई है वइज़ा कुरिअल कुरान, ये कुरान के लिए नाज़िल हुई है, पूरे कुरान का हुक्म है। इमाम से 113 सूरतें पढ़े तो मुक्तदी बिल्कुल खामोश रहे, लेकिन मैं ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब कहकर फातिहा को इस आयत से खास कर रहा हूं। अगर इस माना की हदीस है तो वो भेजें, खुदा की कसम 1,70,000 से 20,000 अभी माफ कर दूंगा। ये बात अब्दुल्ला शेखुपुरी की बनावटी है, अल्लाह के नबी पर झूठ बोला है।
कोई उसका चेला चांटा ऐसी हदीस रखता है तो लेकर भेजे। अब देखो धोखा कैसा है, बात अपनी बताई और मुकाबला क्या करता है, ये कहेंगे हमारे अकाबर बड़े नेक हैं लेकिन हमारे नबी बड़े नेक हैं। अरे नबी की तो तूने बात ही नहीं सुनाई। ये कहते हैं हमारे अकाबर बड़े आबिद हैं, जाहिद हैं, सच्चे हैं, अल्लाह के नबी बहुत सच्चे हैं, बिल्कुल बरहा। लेकिन तू तो नबी नहीं है, बात तो तू अपनी सुना रहा है। तू अल्लाह के नबी पर क्यों झूठ बोल रहा है स्टेज पर बैठ? किसी माँ के लाल में जरूरत है तो ये लेके भेजे मुझे। हदीस कहाँ है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि आयत व इज़ा कुरिअल कुरान से मैंने ये हदीस बयान करके फातिहा खास कर दी, इसका हुक्म रहता बयान कर दिया। जब तू अल्लाह के नबी पर झूठ बोलता है फिर हमारे अकाबर के लिए काफिरों वाली आयतें पढ़ता है, अकाबिरा मुजरिमिया। इमाम अबू हनीफा के लिए काफिरों वाली आयतें पढ़ता है। मुझे गैर दोस्त कहने लगा अपना कि जी गैर मुकल्लदों का दर्से कुरान सुनना चाहिए या नहीं। मैंने कहा उनको कुरान आता कब है? किसको कुरान आता? इनका बड़े से बड़ा आदमी मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी है ना, उसने जब कुरान की तफसीर लिखी तो मक्के से ये फतवा आ गया, मक्का मुकरमा से। फैसला मक्का इसका नाम है। उन्होंने साफ तौर पर इसमें ये लिखा मक्के वालों ने कि सनाउल्लाह को सलाम करना हराम, इसकी शागिर्दी करना हराम, ये काफिर और मुर्तद है, इसने कुरान की गलत तफसीर की। अरे जिनकी तफसीर को मक्के वाले गलत कहते हैं, और जिन लोगों ने कहा यही जो सऊदी हुकूमत है उन्होंने कहा है। इसको शाये करने वाले कौन हैं? बशीर अहमद शक्ति जमीयत अहल हदीस हिंद, उन्होंने इसको शाये किया है। ये है फैसला मक्का। अब्दुल अजीज शक्ति जमीयत मरकज़ी अहल हदीस हिंद, इसमें आप हैरान होंगे क्या अजीब बात लिखी है। मौलवी इब्राहिम साहब सियालकोटी पहले बुजुर्ग हैं जो हजरत अल इमाम मौलाना अब्दुल जब्बार गजनवी मरहूम की खिदमत में हाजिर हुए और मौलवी सनाउल्लाह की तफसीर अरबी की को जमात अहल हदीस के लिए एक फितना करार दिया और कहा कि मिर्जाई फितना से ये ज्यादा फितना है। इसलिए मौलाना मुर्जा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह ने मौलवी सनाउल्लाह साहब को लिखा था, मौलाना आप हमें काफिर मुशरिक कहते हैं रात दिन, लेकिन हमने सुन रखा था कि दोजख में एक तबका ऐसा है जिससे बाकी दोजख के तबके भी पनाह मांगते हैं। आप इतने बड़े गैर मुकल्लद हो गए हैं कि बाकी गैर मुकल्लद भी आपसे पनाह मांगने लगे और आपके लिए फतवा कुफर लेने के लिए मक्के तक पहुंचे, मदीने तक पहुंचे। यही अल फैसलतुल हिजाजिया है जिसमें लिखा है कि 1000 फिरौन को कत्ल करने से एक सनाउल्लाह को कत्ल करना ज्यादा था। ये इनकी किताब है, मैं कुछ नहीं कहता। जबान जल जाए गर्क मैंने कहा हो कुछ सरे माँ से, तुम्हारी टेक के छींटे तुम्हारा नाम लेते। मैं मस्जिद में वही बात तो पढ़ नहीं सकता जब सनाउल्लाह का तफसीर कुरान पर यह फतवा मक्के मदीने से आ गया। तो अब सब जमात ने हाथ जोड़े अब्दुल्ला रोपड़ी के आगे कि खुदा के लिए तफसीर लिखो। तो रोपड़ी साहब ने मार से कुरान के नाम से तफसीर लिखनी शुरू की। अब वो कैसी थी? मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी 1, मोहम्मद जूनागढ़ी 2, उन दोनों ने लिखा कि अब्दुल्ला रोपड़ी की तफसीर कुरान की तफसीर नहीं बल्कि कोक शास्त्र है। क्या है? दोनों ने ये बात लिखी, हमारे पास वो किताबें मौजूद हैं। तो कुरान आता किसको है? उसके बाद अनायतुल्लाह असरी वजीराबादी को सारी जमात ने मेहनत की कि खुदा के लिए कि आप ही कुरान की तफसीर लिखो। उसने तफसीर लिखनी शुरू की तो उस पर मौलाना हाफिज अब्दुल्ला रोपड़ी साहब ने यह फरमाया कि ये तो सनाउल्लाह की तफसीर से भी बदतर तफसीर है। ये तस्लीम करते हैं कि कुरान इनमें से किसी को आता नहीं, हदीस इनमें से किसी को आती, बस इतना ही आता है कि जब कोई हदीस पढ़े कह दो ज़ईफ ज़ईफ ज़ईफ, बस इससे ज्यादा करना। अब देखिए यही आयत वैला कुरे अल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब कुरान पढ़ा जाए तुम तवज्जो करो और खामोश रहो ताकि तुम पर खुदा की रहमत नाज़िल है।
वैजा कोरिया मजहूल का सीगा कैसे भाई कौन पढ़े? अल्लाह के नबी से पूछ लो। फरमाते हैं जब जमात की नमाज हो इमाम अल्लाह अकबर कहे तो माँ वैजा करा फान से तू, जब इमाम कुरान पढ़ना शुरू करे तुम खामोश हो जाओ। भाई इमाम किस सूरत से कुरान शुरू करता है? फातिहा से ना। अगर इतने ही लफ्ज होते तो मसला फिर भी साफ था, लेकिन अल्लाह के नबी तो अनपढ़ों को समझाने आए कि कल कोई कुछ स्टेज पर बैठकर झूठ ना बोले कि इस आयत से अल्लाह के नबी ने फातिहा की तफसीर कर ली। फरमाया इमाम जब गैर मगदूब अलैहिम वलद्दालिन कहे तुम आमीन कहो। मैं पूछता हूँ आपसे, पहली तकबीर के बाद इमाम कौन सी सूरत शुरू करता है? आमीन से पहले कौन सी सूरत खत्म करता है? फातिहा। मैं आपसे पूछता हूँ, मस्जिद में बैठे हैं, अल्लाह के नबी फातिहा को इस आयत में दाखिल कर रहे हैं या निकाल रहे हैं? तो कितना बड़ा झूठ बोल करके गया है वो कि अल्लाह के नबी ने आयत को फातिहा को इस आयत से खारिज किया है। वो झूठ बोलकर फिर हमारे बुजुर्गों पर काफरों वाली आयतें पढ़ता है, हमारे बुजुर्गों पर यहूदियों वाली आयतें पढ़ता है, अबू जहल वाली आयतें वो अबू हनीफा पर फिट करता है। और लोग कहते हैं जी बड़ा कुरान दी सुना के, वो काफिरों वाली आयतें पढ़ता है। सामने बैठे लोग यूं झूमते हैं, नाक से चूहे निकाल निकाल के गोलियां बनाते हैं। सुभान अल्लाह बड़ा कुरान दी सुनाया आप जी ने, बड़ा कुरान दी सुनाया। मसलक अहल हदीस जिंदाबाद, मसलक अहल हदीस कैसे जिंदा हो रहा है? अबू जहल वाली आयतें अबू हनीफा पर फिट हो रही। इसको कुरान सुनाना कहते हैं, लोगों को कुरान का नाम लेकर होगा। इत्तखज़ू अहबारहम व रुहबानहम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, ये आयत उन्होंने पढ़ी है नहीं पढ़ी? किन के लिए पढ़ी है? हमारे इमामों के लिए पढ़ी। ये अहबार रुहबान कौन है जिनको कुरान कहता है कालू नस्ली सोत हराम खोर? क्या इमाम अबू हनीफा हराम खोर है? ये कौन है? कुरान कहता है सम्माउना लिल कज़िब, पहले दर्जे के झूठ। क्या वाकई इमाम अरबा झूठे हैं? जो कौन है ये अहबार रुहबान? जो हराम खोर हैं, हराम कार हैं। यक्तबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह। ये कौन है? जब उनको खुदा का हुक्म सुनाओ कहते हैं कुलूबना गुल, हमारे दिलों पर गिलाफ है, हम नहीं सुनते। कौन है ये जो कहते हैं समीअना व अतअना, हमने खुदा का हुक्म सुना और इनकार कर दिया? क्या ये खूबियां अहबार रुहबान वाली आइमा में मौजूद हैं? ये बातें, ये ऐब मौजूद हैं? इसको क्या हक था कि ये कुरान की आयत जो काफिरों के बारे में, हराम खोरों के बारे में, हरामकारों के बारे में